Hello students, we are seeing 9th standard physics motion. Okay, in our science textbook it is lesson number 8 and physics chapter number 1, that is motion. In previous videos we have studied about motion, displacement, velocity, distance, acceleration. All these concepts we have seen in the previous video. We have also seen different types of motion, and the last definition in previous video we have seen was uniformly accelerated motion. What is the meaning of uniformly accelerated motion? The motion in which acceleration remain constant. The motion in which acceleration remain constant is called uniformly accelerated motion. ठीक है? This motion is represented by three equations, or we can say that for uniformly accelerated motion we have three relationship between velocity, acceleration, displacement, etc. These equations are most commonly known as equations of motion. But whenever we are talking about equations of motion, we are considering uniformly accelerated motion. हम क्या consider करते हैं? Uniformly accelerated motion consider करते हैं. See, पहले हम इसको लिख लेंगे. Let us consider an object performing uniformly accelerated motion. Okay, let us consider an object performing uniformly accelerated motion. Okay, let u be the initial वेलोसिटी. अभी एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसिडर कर रहे हैं जिसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है u. आपने इसको क्या किया, कुछ इंटरवल के बाद भी इसकी स्पीड जो है चेंजेस टू v. आपने कौन सा टाइम इंटरवल कंसिडर किया? सपोज t is the instant of time A be the acceleration and S be displacement. मतलब ये जो नोटेशंस है ये हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अलग अलग क्वांटिटीज इंडिकेट करते हैं. U इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी, V इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी, T इंडिकेट टाइम, A indicates acceleration and S indicates displacement. Then equations of motion, equations of uniformly accelerated motion are, number 1, पहला इक्वेशन है V equals to U plus AT. V equals to U plus AT. दूसरा इक्वेशन है S equal to UT plus half AT square. S equal to UT plus half AT square. and third है V square equal to U square plus twice AS. V square equal to U square plus twice AS. ये जो नोटेशंस है हर किसी के हम यही 5 में से ही एक इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है ना. फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. इतना हम नहीं करेंगे. वी विल रिमेंबर इट लाइक दिस. V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड हम कई सारे प्रॉब्लम्स क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं. देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे. ठीक है. सी प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका V इक्वल्स टू U प्लस AT, इसको प्रूव कैसे करोगे आप? प्रूफ में लिखो let us consider an object performing uniformly
एक्सिलरेटेड मोशन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने. लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. ठीक है. देन लेट, क्या लेट, u इज, डिटेल में लिखना है. हाँ, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v is final velocity of object, t is time, a is acceleration. s की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन के लिए, सो वी विल नॉट राइट ये s. ठीक है. अभी we know that the acceleration is given by what? The acceleration is given by a is equal to change in velocity upon time, है ना. acceleration equal to change in velocity v minus u upon time कितना है? t है. हम t को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 80, बराबर. 80 इक्वल्स टू v माइनस u. मैं आगे का पोर्शन यहाँ पे कर रही हूँ. मतलब आपको क्या मिला, v माइनस यू इक्वल टू 80. ठीक है ना. मैंने इसको क्या किया, रिवर्स किया. v माइनस यू इक्वल टू 80. देयरफॉर v इक्वल्स टू माइनस यू को इक्वल टू के इधर साइड में लेके जाएंगे तो बनेगा प्लस यू, यू प्लस 80. v इक्वल्स टू यू प्लस 80. ठीक है. ये है प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या लिखोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स व्हाट, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80. ये है प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अभी मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. सी, प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, देखो. सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, है ना. एस के लिए आपके पास इक्वेशन है. तो फिर से वही, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. ठीक है. लेट u be this, v be this, a be this, t be this, s be this. क्या, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, a है एक्सिलरेशन, t क्या है, t है टाइम, और s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रखो. वी नो दैट, क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2. याद है, ये फॉर्मूला हमने कंसिडर किया था जब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन की थी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, है ना. इसके बाद में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एंड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या ले सकते हो, दूसरा फॉर्मूला ये भी ले सकते हो ना, कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. तो इस हिसाब से डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू आपके पास आएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है. डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है ना. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. फॉर्मूला नोटेशन के फॉर्म में लिखो, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमें बताता है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, बताता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. पुट द वैल्यू ऑफ v, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, इन 1. देयरफॉर वी विल गेट s इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, u प्लस v की वैल्यू पुट करो. केयरफुली देखो, हाँ ये पार्ट,
आपने क्या किया, आपके पास इक्वेशन है s इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अभी यहाँ पे v जो है, v के जगह पे आपको u प्लस 80 पुट करना है। इक्वेशन बनेगा अपना s इक्वल टू यू प्लस वी के जगह पे मैं लिख रही हूँ u प्लस 80 अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम बराबर u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो s इक्वल टू आपको मिलेगा u प्लस यू, मतलब क्या, u प्लस यू दैट विल बिकम्स ट्वाइस u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। अभी देखो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रही हूँ। दिस टर्म इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग डिनोमिनेटर्स, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर। आगे के पेज पे ये टर्म में फिर से लिखती हूँ, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर। देखो क्या कैसे करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है, ये ऐसा था, s इक्वल टू ट्वाइस यू प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाय था t, है ना। ये इक्वेशन था, मैंने इसको फिर से लिखा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, मतलब ये 2 जो है मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ट्वाइस यू बाय 2 प्लस 80 बाय 2 लिख सकती हूँ। नॉर्मली अपन मैथमेटिक्स में ये टर्म के जगह पे डिनोमिनेटर कंबाइन करके ये टर्म लिख सकते हैं ना, है ना। अभी मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, ट्वाइस यू बाय 2 प्लस 80 बाय 2 और इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है t से, है ना। 2 विल गेट कैंसल, ये आया u प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाय 80, हाफ 80 ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड बाय है t से, t ब्रैकेट के अंदर लेके आओ, दैट विल बी ut प्लस हाफ a, t इंटू टी होगा t स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। क्या है ये, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या है इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। समझा, हार्ड है क्या, हार्ड। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, आपको इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, सी पहली स्टेप क्या करनी है यहाँ पे आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए, कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा। उसके बाद में डिस्टेंस इक्वल टू आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे आपने लिया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 पुट की, उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एस इक्वल टू एस मतलब डिस्टेंस इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट की, वी इक्वल टू यू प्लस 80 किया, फिर ये वैल्यू इक्वेशन में पुट की, आपको मिला s इक्वल टू यू प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, यू प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट के बाहर हम u प्लस यू होगा ट्वाइस यू प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। फिर आपने डिनोमिनेटर सेपरेट किए, डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद में ट्वाइस यू बाई 2 प्लस 80 बाई 2 बना, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई t है। इसके बाद में 2 गेट कैंसिल, आया u प्लस मैंने ये 2 जो था अपॉन में का वो सामने लिया, हाफ 80 ब्रैकेट के बाहर t को मल्टीप्लाई किया, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद में हम प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है आपको यही फॉर्मूले के ऊपर से। कौन से फॉर्मूले के ऊपर से, सेकेंड फॉर्मूले के ऊपर से, ठीक है। फिर से वो चीज़ें करनी है आपको, क्या, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। लेट u is this, v is this, a is this, t is this, s is this। ये वाला पोर्शन आपको पता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थर्ड इक्वेशन से। देखो we know that क्या we know that s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमें पता है।
यू टी इक्वल्स टू वॉट, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पता है। कौन सा इक्वेशन है ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। इसके बाद में हमें इक्वेशन नंबर 1 भी पता है। 1 क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, है ना। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसके ऊपर से हमने t के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर ए टी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए टी, यू को इधर शिफ्ट करो, v माइनस यू आएगा, v माइनस यू। देयरफॉर टाइम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, टाइम के लिए फॉर्मूला आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, बराबर। टाइम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ t, गलत लिखा मैंने कुछ तो बिना, t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, सॉरी, t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, s इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन a। मैंने t की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू क्या पुट की मैंने, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ इंटू a इंटू फिर से v माइनस यू अपॉन a का आएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुई मेरी पहली टर्म, इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ, अभी यहाँ पे देखो ये a कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ना, ऊपर नीचे का, यहाँ पे क्या बचा, v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, v माइनस यू का स्क्वायर। केयरफुली देखो हमने क्या किया इक्वेशन में, यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a पुट की, यहाँ पे यू टी था, u इंटू वी की t की वैल्यू पुट की, प्लस हाफ a इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट की। यहाँ पे देखो एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a और भी है जो नीचे बचेगा, है ना, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये पहली टर्म आई यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ, एक a कैंसिल हो गया, v माइनस यू ब्रैकेट का स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या बचा, नीचे बचा एक a, ठीक है। मैं ये स्टेप पीछे फिर से लिख रही हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सी मेरी टर्म क्या है, s इक्वल टू मैंने लिखा था यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, है ना, प्लस क्या था, प्लस देखते हैं यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ, ब्रैकेट में था v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करोगे आप, आपको सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ये आया मेरा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v माइनस यू का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a, बराबर है ना, 2 इंटू ए मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप मैथमेटिक्स यूज़ करो तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। 2 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करती हूँ मुझे मिलेगा ट्वाइस यू वी माइनस 2u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2u प्लस यू स्क्वायर, 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस से, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ऊपर की एडिशन करो, ट्वाइस यू वी माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी प्लस यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, अपॉन में है ट्वाइस a, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस यू वी माइनस ट्वाइस यू वी, दिस विल गेट कैंसिल, बचा क्या, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये होगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, बराबर। सी 2uv minus 2uv get cancel, minus 2u square plus u square, that will become minus u square plus ये v square अपॉन में ट्वाइस a।
ये किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है। देयरफॉर ट्वाइस ए को शिफ्ट कर जाओ, यू विल गेट ट्वाइस ए एस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना। देयरफॉर माइनस यू स्क्वायर को शिफ्ट करो, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर। देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझा, हार्ड है क्या ज़्यादा, थोड़ी एक दो स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, फिर ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। कौन सी वाली स्टेप्स देखो, आपने क्या कंसिडर किया थर्ड इक्वेशन के लिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सॉरी, थर्ड इक्वेशन के लिए आपने क्या कंसिडर किया कि पहले हमारे पास इक्वेशन 3 है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने टी की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 पे से, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में टी के जगह पे पुट करेंगे। बस एस इक्वल टू यू, टी की वैल्यू पुट करो प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर पुट करो, एक कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक ए बचेगा और यहाँ पे u से मल्टीप्लाई किया तो आएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ वी माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए बराबर। बस अभी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते जाना है आपको, मैथमेटिक्स के लॉज जो है वो अप्लाई करके। डिनोमिनेटर में ट्वाइस ए लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है आपको। जो सेम टर्म आती है कैंसिल करते जाओ विथ अपोजिट साइड और जो बचेगा उसको क्या करो, रीअरेंज करो। यू विल गेट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। बस स्टार्टिंग में किसके जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो अगर आपको अच्छे से पता है तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 इक्वेशन से फिर से एक बार लिख लेंगे और इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। सी, पहला इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसके ऊपर के, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज a scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. Just after the start, calculate the acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. सबसे पहली चीज़ जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फिजिक्स के क्या कोई भी न्यूमेरिकल्स, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है। अगर क्या दिया है वो आपको बराबर से आइडेंटिफाई करते आया तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है देखो, ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 seconds जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। आपने स्कूटर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में 10 seconds के बाद में इट एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ दिस मच। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 36 km/h हो जाती है। कब, 10 seconds के बाद में। यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज आपको दी है बताओ, टाइम दिया है 10 सेकेंड बराबर, एक्सेलरेशन कितना है आपको निकालना है बराबर, ये 36 km/h ये आपको एक स्पीड दी है ना। ये कौन सी स्पीड है, आपको फॉर्मूले में अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 2 चीज़ें लगने वाली है, एक u और एक v हर फॉर्मूले में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये u की वैल्यू है कि v की वैल्यू,
है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो स्पीड है मतलब आपने स्कूटर को स्टार्ट किया उसके बाद में ये स्पीड अचीव की। तो स्टार्ट करने से के समय पे स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड वो होगी आपकी 0। ये बात केयरफुली ध्यान में रखो। यहाँ पे आपको एक स्पीड और दी हुई है, ये है आपकी फाइनल स्पीड v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा एक स्पीड आपको और दी है, वो क्या है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से देखो, आपको वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर, बराबर है ना, और इनिशियल वेलोसिटी दी है 0। मैंने मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनली मुझे कन्वर्शन मीटर पर सेकंड में करना है। और 0 किलोमीटर पर आवर, 0 मीटर पर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्यों लिया मैंने मीटर पर सेकंड, क्योंकि मुझे टाइम सेकंड में दिया है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में, मतलब किलोमीटर पर आवर को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने कुछ तो भी कन्वर्शन का फॉर्मूला बताया था आपको, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर याद नहीं है तो अभी भी याद कर सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी कि 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, 3 चीज़ें दी है आपको। अभी क्या निकालना है आपको, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है मुझे, u, v, t और a 4 क्वांटिटीज चाहिए। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर मैंने फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया v इक्वल्स टू यू प्लस AT, तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। चलो इस्तेमाल करूँ। देयरफॉर v इक्वल्स टू यू प्लस AT, पुट द वैल्यूज। देयरफॉर 10 इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब ये हो गया 10 इक्वल्स टू 10a। देयरफॉर 10 अपॉन में जाएगा 10/10 इक्वल्स टू a। देयरफॉर a इक्वल टू 1, यूनिट क्या आएगा, 1 का यूनिट क्या आएगा, एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, हमें अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम इसके और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं और इसके बाद में मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद को सॉल्व करने के लिए भी दूंगी। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।